Hello everyone. Good morning. In today's topic, we are study the last head of your syllabus, H5. In before syllabus, we study the number of heads. First, head of income under the salary is H1. Then the second head, H2, is the study of secondary head, income from house property, income from house property. Then third head, income from financial sources like business and profession. Then fourth head, we are study the income from the capital gain. And today we are study the income from the main study other sources. It means house property, salary, capital और कैपिटल गेन ये बात जो कुछ भी बचता है जो इनकम होती है लाइक डिविडंड एंड ऑल के ऊपर अभी हम स्टडी करने वाले आपण कुठल्या गोष्टीवर डिविडंड किंवा इंटरेस्ट ऑन युअर इन्व्हेस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल असे जे अदर सोर्स आहे जे कधीतरी इन्कम म्हणून दिसतात ह्या गोष्टीवर टॅक्स कसा असतो ह्याची आपण स्टडी करणार आहोत ओके तर थोडक्यातच मी चालू करून घेतो ह्या स्टडीमध्ये आपल्याला काय बघायचं आहे की time of calculation which parts are used for the income sources okay and these income sources are calculated are not calculated it means if are the agriculture source if are the agriculture source then how much agriculture source are taxable we know that the all agriculture source are untaxable non-taxable but something because something are taxable it means if you are a study that your agriculture part your business in the abroad it means you are purchasing the abroad business your business तुम प्रोडक्शन कहाँ कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्राइमरी बिजनेस इन अबाउट और वो जो अबाउट में प्रोड्यूस हो रहा है वो इंडिया में लाके भेज रहे हैं इट्स योर राइट पर्सन प्लस एक्टिविटी नो so that the amount is taxable okay and remaining like if you have invested in a share and if this company are invested into share and this share are also the purchase the share are Indian company the amount is non-taxable but the foreign company the amount is taxable right here also we study the number of pattern which is taxable and non-taxable under the income of other source okay look here start today's topic. The study is income from other sources. So here the basic content of the topic is the introductory, the basic charges like general, specific and other taxable items. The generally कौन से like share, debentures, agriculture part and all. Then deduction, it means exempted. किस किस को exempt किया गया है कि which one part of other source of income are exempted. Then repair, insurance and other expenditure are calculated or not. For example, your capital gain is there, furniture is there. The furniture repair का बिल हमें देना है कि नहीं देना है त्याचं कॅल्क्युलेशन करायचं की नाही करायचं ह्याच्यावर पण आपण डिस्कस करणार आहोत ओके दिस इज समराइज्ड डाटा let's start today's topic after this summarized diagram the first point the introduction this is the last and residental head of income any item of income which does not fall under the any last heads are included in other income head of display here it means salary income from house property profit from business capital gain is taxed under head of के अंदर जो नहीं आते all things are included here ह्यांना सोडून जे येणार आहेत ते इथे आपण घेणार आहोत the general is basic charges so generally income of every kind कुठल्याही काइंडची इन्कम आर टॅक्सेबल all times are which not be excluded from the total income under this act जो दूसरे इनकम के अंदर जो हेड ऑफ अदर इनकम है उनके अंदर नहीं आती ऑल ओवर आर कैलकुलेटेड हियर shall be charged income tax under the head income from other source स्पेसिफिक कौन कौन से है तो स्पेसिफाइज किया उसने तो नंबर वन providing the following income in particular shall be the tax under the other source number one dividend on share is taxable winning from lottery prize cross puzzles race including horse race card games means
जो पत्ते खेलते हैं, जुआ, other games, betting and gambling are the taxable. Any sum raised by the assessee from the employee at a contribution for the staff welfare. कोई अगर staff welfare के लिए contribution किया जा रहा है और तुम उसे एक social welfare बोल रहे हो, but staff is your income oriented person, वो तुम्हारा income है, वो HR है, human resource है, तो तुम्हारा business हो रहा है, then it's also taxable. Interest on security, if not taxable as profit as gain as business profession. अगर taxable नहीं है तो professional gain में tax होने वाला है, यानी यहाँ नहीं तो tax लेने वाले. Income from machinery, plant, furniture belong with the assessee let on hire. Hire purchase के ऊपर जो machine लेते हैं, यानी machine purchase करने का कोई जरूरत नहीं हुई, परचेस कर सकते थे लेकिन परचेस नहीं किए, जस्ट रेंट पे लिए, उसको यूज किए और अपना मैक्सिमम इनकम बनाए, तो उस रेंटेबल हायर मशीन का भी जो इनकम होने वाला है, द इनकम इज टैक्सेबल एज कम्पेयर टू अगर तुमने परचेस किए होते तो वन टाइम टैक्स भरना पड़ता एज अ कैपिटल गेन असेट के अंडर, देन उसके ऊपर नो टैक्स अंडर. देन रिसीव फ्रॉम द कायम इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग bonds if not taxed under any other heads, समझा. Then money, movable immovable property receive of individual Hindu undivided family without consideration. All over money कैसे ही कौन से भी इफेक्ट से जो तुम्हें प्रेजेंट होने वाली है, अगर वो क्लास किसी हेड के अंडर नहीं आ रही, कुठल्याच हेडच्या अंडर येत नाही आहे, the all heads are taxable under this sources. Share of private company received by firm of any company without consideration. कंपनी की किसी मीटिंग के बाद या पहले अगर किसी कंपनी ने कोई शेयर परचेस किया जो किसी प्राइवेट कंपनी का, नॉट अ पब्लिक कंपनी, द ऑल इन्वेस्टमेंट इन शेयर आर टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेस. ओके. देन द नेक्स्ट इज प्राइम premium receive of issuing share. Premium issue of issuing share are also taxable. Consideration in excess of F&B of share in closely held by company where share is premium. Okay. Then the next point is the one by one एक एक को calculate करेंगे. The first is dividend. Any company by way of dividend refers the under section 115 is exclusive for the recording income of shareholder. Under section 115, the dividend declared the distribution or paid by domestic company whether the out of current and accumulated profit or not. In short, मैं तुम्हें explain करता हूँ, इतना बड़ा सोचने से अच्छा है कि dividends के दो पार्ट होते हैं. एक तो ये investment in nation and investment in abroad. If the investment is abroad is there, then the complete dividend is taxable. Then also in nation, the two types of company, public limited and private limited. If it is private limited, the some exempted remaining are taxable. If it is public limited, the all over are exempted. अब इसको जरा read करो. Which charges the additional income tax at the flat rate 15% additional normal income tax chargeable income the company. This known as the corporate dividend tax. However, corporate dividend tax at 30% liable on demand dividend under the section 2. यानी वर्क से पहले जो डिमांड की जाती है डिविडेंड, जो क्वार्टरली या 6 मंथली दी जाती है, यानी एक साल में 2-3 बार तुम्हें इनकम हो रहा है, दैट इज 30% आर टैक्सेबल. डिविडेंड रिसीव फ्रॉम कंपनी अदर देन डोमेस्टिक कंपनी इज स्टिल लायबल to tax in the hand of shareholder. For example, dividend received from foreign company of cooperative society limited by share is liable to tax under the shareholder. Foreign company taxable. Okay. It's maybe, however, when the we noted the exemption available under the section would not be allowed in respect of dividend income chargeable of tax. Okay. Then the next is एग्जाबिट किया उसको चार्जेबल डिविडेंड एंड द हेड ऑफ शेयर होल्डर कैसे होती है. तो मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया वही है. डिविडेंड इन रिसीव फ्रॉम द डोमेस्टिक्स कंपनी, अगर नेशनल होगी तो यस या नो, एक तो डिविडेंड मिलेगा या तो नहीं मिलेगा. आफ्टर दैट इफ यस, इन केस ऑफ एक्चुअल डिविडेंड, इन केस ऑफ डिमांड डिविडेंड. एक्चुअल डिविडेंड में क्या है, एग्जिट देन 10 लाख हुआ तो टैक्सेबल अंडर सेक्शन देन ए और 2 कोई भी हो तो 30% है टैक्सेबल इन डिमांड डिविडेंड. देन उसमें भी यस इफ 10 लाख एग्जिट, नो अगर फुल्ली एग्जेम्प्टेड अंडर 1034 अगर 10 लाख से नीचे जा रहा है. ओके. देन उसके ऊपर स्मॉल इलिस्ट्रेशन उसने बनाया है. ऐसे स्मॉल इलिस्ट्रेशन को मैं लेने वाला नहीं हूँ, जस्ट यहाँ एक एग्जांपल के लिए हम रीड करते हैं. तो मेन एग्जांपल्स आर स्टार्टेड फ्रॉम टुमारो. ओके.
ए लिमिटेड डोमेस्टिक कंपनी डिक्लेयर द डिविडेंड ऑफ 170 लाख। तो उसने क्या बोला है, 10 लाख के ऊपर जिसको मिलेंगी इज टैक्सेबल, और उसके नीचे जो रहेंगी वो एग्जेम्प्टेड। The financial year 2017, they distribute the same of the X holding 10% of share. अब 170 का 10% कितना हुआ? In short कोई भी बोल सकता है 17 लाख। तो 17 is more than 10 लाख, तो 10 लाख की छूट, उसके ऊपर के 7 लाख का टैक्सेबल। देखो उसने सॉल्यूशन में बताएगा, the dividend is 1,70,000 has declared distributed in the previous year in subject to dividend distribution, the tax under section 115 in the hand of A Limited इन द हैंड ऑफ सेकेंड। अब सेकेंड के बारे में क्या बोला है देखो, सेकेंड लाइन में इन द हैंड ऑफ मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स के बारे में क्या बोला, होल्डिंग 10%। ओके, मिस्टर एक्स डिविडेंड रिसीव अप टू 10 लाख, जो 10 लाख से गए वुड बी एग्जम्प्टेड अंडर द सेक्शन 2, यानी 10 लाख तक छूट, एंड 7 लाख बिग्स डिविडेंड रिसीव एग्जिस्टेंट 10 लाख, और 10 लाख से ज्यादा जा रही है, इट इज टैक्सेबल 10% एज पर द सेक्शन 115, और उसको क्या होंगे, टैक्स देना पड़ेगा, कितना, 7 लाख के ऊपर देना पड़ेगा, किसमें से, 17 लाख में से। 10 लाख तक अगर तुम्हें डिविडेंड मिल रहा है तो उसके ऊपर नो डिविडेंड। ओके, देन इसी तरह उसने देखो आगे क्या बोला हुआ है, मिस्टर वाई होल्डिंग 5% ऑफ शेयर। अब 5% कितना होगा, अगर ये 17 है तो उसका आधा है, यानी नो टैक्स। ओके, मिस्टर वाई इज नॉट रिसीव डिविडेंड, अब इसको मिला ही नहीं है तो ये टैक्स भी नहीं भरेगा। अंडरस्टैंड, ये सिंपल सॉल्यूशन। द विनिंग फ्रॉम लॉटरी, अब लॉटरी विनिंग होती है तो उसमें क्या होता है, अमाउंट ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरी across puzzle card game, betting and gambling is a tax under section 56 lottery, 56 lottery, including the prize awarded by any person by drawn by lottery by chain in other manners would set, it means लॉटरी में लगने वाली द ऑल अमाउंट आर टैक्सेबल होती है। इन शॉर्ट तुम्हें ये बनेगा, फॉर एग्जांपल कौन बनेगा, करोड़पति आल्सो। Entertainment program, television, electronic mode in which the people company compute the winning prize, it is all are taxable. Okay, then the next is employee contribution to staff welfare scheme. Staff welfare scheme यानी EPF, employee provident fund, public provident fund and all, in which the define the income state that the contribution from the employees towards to provident fund, separation fund, employee staff insurance fund, etc. is included the income for the employer. किसके लिए होता है, एम्प्लॉयर के लिए इनकम होता है। If the employer is not businessman, such the contribution are under resident head of income, और इनकम हुई तो क्या होने वाली हो, टैक्सेबल होने वाली है। ओके, द इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इट मींस तुम्हारे शेयर बॉन्ड्स जो होते हैं। अभी इसके ऊपर क्या बोला हुआ है, इफ द पर्सन इज डीलर इन सिक्योरिटी इनकम, therefore the tax of business income, otherwise the interest from the security in taxable under is this head, the income security refers to the bonds, debenture, etc. Interest on security means interest on security of the company and the central government, state government. Interest on debenture on the security of money issued by the behalf of local authority at company or corporate, यानी गवर्नमेंट की कोई भी रहेंगी तो ऑल ओवर आर टैक्स नॉन टैक्सेबल, गवर्नमेंट के अंडर रहेगा तो यानी वो फिर लोकल बॉडी यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एमएनसीज, महानगर पालिका एमएनपी, देन एमएलएस के जो होते स्टेट गवर्नमेंट, असम मेंबर ऑफ असेंबली, देन सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्लियामेंट एंड ऑल, वहां से कोई पॉलिसी आई होंगी और उस पॉलिसी में तुम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, देन दिस इज मैक्सिमम नॉन टैक्सेबल। बट इफ द फॉलोइंग चेंज आया, interest from the securities taxable, receive the business assessing maintain the book cash balance, assessing maintain the books merchant basis, the maintain of books account is charge according to the basis. ओके, अब इसमें से क्या होता है, फिर टीडीएस काटते हैं और टीडीएस कट होने के बाद द अमाउंट इज ओके। देन उसके ऊपर उसने इलिट्रेशन दिया है, देखो क्या बोला हुआ है, मिस्टर ए बी, देखो इस सिंपल सॉल्यूशन से तुम्हें समझेगा, मिस्टर ए बी हैज इन्वेस्टेड ₹10 लाख on 1 April 2018 and 10% डिबेंचर, यानी अगर एक साल बाद उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 10 लाख का 10% 1 लाख of ABC Limited. Interest on due on the half yearly basis on 30 September and 31st March each year. AB was urgent needed money and hence sold the security on 1st September 2000. Mr. CD, how much amount taxable per year? तो उसमें बोला in case of interest income, Mr. AB shall be nil on the Mr. CD shall be rupees 1 lakh. 1 लाख मिलेगा और 1 लाख के ऊपर है जो मिनिमम रेट अमाउंट है, इसलिए वो 10 लाख से एक्सीड नहीं हो रही, इसलिए
उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑफ इनकम नहीं दिखेगा। ओके, द इनकम फ्रॉम मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर। अभी क्या, इनकम फ्रॉम मशीनरी प्लांट फर्नीचर let on hire is taxable under his head and is not taxable income of from business। अगर वो भाड़े पे लाए तो अंडर दिस अदर सोर्स ऑफ इनकम में टैक्सेबल है, लेकिन तुम उसे असेट नहीं बता सकते, इसलिए वो कैपिटल गेन के अंदर वो नॉन टैक्सेबल है। अंडरस्टैंड? देन इधर रिकवरी ऑफ अगेंस्ट अर्लियर डिडक्शन। अब ये एक सिंपल पार्ट है जो डायरेक्टली सॉल्यूशन में बताऊंगा कि रिकवरी कैसे किए जाते हैं, एग्जाम्पशंस एक्सपेंडिचर्स में से कैसे डिडक्ट किए जाते हैं, और नेट टैक्सेबल अमाउंट यानी जो हम डिडक्शंस करते हैं ना, नेट टैक्सेबल अमाउंट निकलता है, उसके बारे में उसने बोला हुआ है। देन इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर पार्ट। अब इसमें क्या बोला हुआ है देखो, डिफाइन अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर कैन बी टैक्सेड ओनली बाय द स्टेट गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट cannot tax from the agriculture under the income tax act, hence income from agriculture is exempted under income tax। इतनी बात ही याद रखना है, remaining are exempted। उसके नीचे उसने क्या बोला हुआ है, I don't care, बट उसने कुछ ऐसे बातें बोली हुई है जो तुम करते हो और इनकम दिखता है। इट मीन्स द वन थिंग इज, उसने एग्रीकल्चर करने बोला है, उसने ज़राअत करने बोला है, उसने तुम्हें प्रोडक्शन करने बोला है, बट यू कैन डील विद कि उस जगह का ब्लॉक बना रहे हो और एमआईडीसी एरिया में रेंट पे दे रहे हो, कंपनी खड़ी करो और काम करो, तो तुम्हारी नोट डाउन है एग्रीकल्चर एरिया है, लेकिन काम कौन सा हो रहा है, ऑन रेंट बेसिस पे। एनी रेंट और रेवेन्यू derived फ्रॉम द लैंड विच इज सिचुएटेड फॉर इंडिया इन एग्रीकल्चर फॉर्म, इट इज टैक्सेबल। Any income derived from such as land agriculture operation including the procedure of agriculture are taxable। Income attributed from house, however, income from arise from the use of such builder land non agriculture purpose, यानी उसने घर बनाने के लिए नॉन एग्रीकल्चर, इट मीन्स क्या बोलते हैं, कुठला तो जागा काय कशी आहे आपण बोलतो, कोणाला जागा विकायची असेल तर, जर कोणी असं तुमच्याकडे मुद्दा ठेवला आणि त्याला पैशाची गरज आहे, मला माझी जागा विकायची आहे, तर आपण काय म्हणतो, एनी प्लॉट आहे, तर एनी प्लॉट करणं इट मीन्स नॉन एग्रीकल्चर इट मीन्स ऐसी जगह जिसपे एग्रीकल्चर नहीं करना है, तुम्हें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्लांटिंग करना है, ओके, इट इज नॉन एग्रीकल्चर। तो नॉन एग्रीकल्चर की कॉस्ट ज्यादा होती है, लेकिन उसके ऊपर टैक्स लगते रहता है, बिकॉज वहां अभी एग्रीकल्चर वर्क नहीं होने वाला है। इफ एग्रीकल्चर वर्क इज देयर इज नॉन टैक्सेबल। इसलिए गरीब खुश क्यों होता है कि उसकी जगह एग्रीकल्चर होती है। नॉन टैक्स एनए प्लॉट करने वाले को ऐसा लगता है कि बेचते वक्त ज्यादा पैसे मिलते हैं, लेकिन उसको उतना ही स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ता है। इज अ नॉनसेंस वर्क, अंडरस्टैंड? देन द नेक्स्ट पॉइंट इज रेंट और रेवेन्यू ड्राफ्ट फ्रॉम लैंड, जगह से जो मिलता है लैंड से, जो यहाँ उसने पहले ही बोला हुआ है, एनी रेंट एंड रेवेन्यू ड्राफ्ट फ्रॉम द लैंड। उसके ऊपर क्या बोला हुआ है, रेंट मीन्स द पेमेंट इन कैश और काइंड ऑफ द अदर ओनर फॉर यूज फॉर लैंड, ओके। रेवेन्यू मीन्स द टाइप ऑफ यील्ड फ्रॉम द लैंड, यानी वो जगह इस्तेमाल करने के बाद जो इनकम हुआ वो। ड्राफ्ट फ्रॉम लैंड, रेंट और रेवेन्यू शुड बी द ड्राफ्ट फ्रॉम लैंड, इन दिस शुड अराइज directly from land, however such revenue does not include capital gain from the transaction। वो किस वजह से होनी चाहिए, वो जगह के इस्तेमाल की वजह से ही होनी चाहिए, ऑनली अँड ओनली त्या जागेचे वापरणं गुण झालेलं आहे, आणि ते कुठे पाहिजे, सिच्युएटेड इन इंडिया, भारतामध्येच पाहिजे, यूज फॉर एग्रीकल्चर होणं पाहिजे, तर ते एक्झेम्प्टेड आहे, नाहीतर ते टॅक्सेबल आहे, ओके। देन द सम रिसीव्ह बाय मेंबर फ्रॉम एचएएस। आता काही इन्कम तुम्हाला हिंदू अनडिवायडेड फॅमिलीच्या फायद्यामुळे होते, त्याच्यामध्ये काम कोण करतो, करता, रिमेनिंग ज्यांना जो पैसा भेटतो हा टॅक्सेबल, करतासाठी तो इंडिव्हिज्युअल टॅक्सेबल झाला। एनी सम रिसीव्ह बाय मेंबर ऑफ हिंदू फॅमिली हॅड out of the income from the family or the other source, it is tax exempted from tax। Exemption denied, however the above exemption is not available where the provision is section of act apply HUF by member of family। कधी ते नाही होणार आहे, तो HUF आहे तो मेंबर ऑफ फॅमिलीचा हेड असेल तर त्याच्यासाठी तो एक्झम्प्टेड आहे, नाही आहे, रिमेनिंग आर एक्झम्प्टेड आहे। अवॉइड डबल टॅक्सेशन अवॉइड करण्यासाठी सिस्टम ठेवलेलं आहे की तो स्वतःच्या नावाचा टॅक्स भरतोय, कंपनीच्या नावाचा टॅक्स भरतोय, डबल त्याला भेटलंय मेंबरशिप म्हणून भरतोय, असं 3-4 वेळेला एक माणूस टॅक्स भरेल का, नाही, म्हणून तिथे अवॉइड केलेलं आहे। त्याच्यावरून छोटीशी इलस्ट्रेशन त्याने जनरेट केलेलं आहे, बघा काय म्हणायला आहे, ABC including has
personal income of rupees 1,40,000. He is a member of Hindu undivided family which has the income rupees 30,000. ABC get rupees 15,000 out of his income. त्याने 30,000 15,000 घेतले. Income of HUF is his share is discuss ABC tax. मी थोडं फास्ट घेतोय बट आपण जेव्हा लेक्चर होणार आहे त्याच्यानंतर मी रिव्ह्यू घेणार आहे तिच्या तिथे आणि पुन्हा आपलं डिस्कस होणार आहे तर फास्ट होतोय वगैरे हे टेन्शन घेऊ नका. आपल्याला पोर्शन थोडं स्पीडली म्हणजे ह्या दिवाळीच्या बिफोर संपवायचं इन बिफोर दिस 30 त्यामुळे थोडं मी स्पीड वाढवतोय. सॉरी फॉर दॅट. देन एक्झम्पशन ऑफ डिस्ट्रीब्युशन कंपनीज. काय डिझास्टर कॉम्पेन्सेशन जे होणार आहे ते आर एक्झम्प्टेड. डायरेक्टली नाही बोलावं. ड्यू टू द डिझास्टर जे तुम्हाला इन्कम होतं फ्रॉम गव्हर्नमेंट लाईक फ्लड झालं अर्थक्विक अँड ऑल जो इन्कम भेटणार द इन्कम आर द गव्हर्नमेंट तुम्हाला प्रोव्हाइड करते त्यावर गव्हर्नमेंट टॅक्स घेईल का? नो, इट इज non-taxable. Such companies should be generated by the central government, state government, local authority. However, the exempted would be the available respect compensation for allowing any demand or loss which has been already been allowed as a deducted under this act. Disaster means the catastrophes, mishaps, calamity or grave occupation in any area arise from the nature or man-made causes by accident, negligence. It should be affected causing. It means तुम्हारा accidental जो income होती है and all by the insurance and all. Then receipt from LIC. LIC से जो होने वाली income है वो कैसे taxable होती है उसके ऊपर बात. The clauses classify the any sum received from under the life insurance policy, including the all allocated way of bonus on such policies, shall not be included the total income of person. तो total income of person है इंडिविजुअल में नहीं जाता है तो कहाँ आने वाला है? अदर सोर्स में आएंगे. Recently policies were introduced the respect of premium payable at very high. Sometimes such premium were payable on one-time basis. This similar deposit or bonds with the view of insurance policy treated with investment since clouded has been the national follow. कुछ उनकी पॉलिसीज है जो पॉलिसीज को इनकम टैक्स के डिडक्शंस के अंदर छूट दी हुई है. वो कौन से? वो डिडक्शन फ्रॉम इनकम में हम स्टडी करने वाले हैं. अभी सिर्फ तुम्हें रीड करना है. ओके, इट इज योर नेक्स्ट टॉपिक डिडक्शन फ्रॉम इनकम. द पेमेंट फ्रॉम सुकन्या समृद्धि अकाउंट. ये कौन सा अकाउंट है? सुकन्या समृद्धि. बेटी बचाओ बेटी सिखाओ ऐसा कुछ एक मुलगी वाचवा मुलगी शिकवा ऐसे अकाउंटिंग सिस्टम है. उनके अंडर जो पेमेंट्स होते हैं जो तुम्हें पेमेंट होने वाले हैं लेडीज को दे फुल्ली आर एग्जेम्प्टेड. इट मीन्स तुम्हारा अगर अकाउंट रहेगा और उसके अंदर तुम्हें सीखने के लिए वगैरह पैसे आ रहे स्कॉलरशिप्स the scholarship generated meet the education are exempted. The entire amount scholarship would be exempted interest in education. लेकिन इसके अंदर एक खास बात है. कभी भी हमें एक बात याद रखनी है एज ए इंडियन गवर्नमेंट हम दो हमारे दो ये इनकम टैक्स में होता है. यानी तुम्हें तीसरा कोई चाइल्ड होगा तो थर्ड चाइल्ड के ऊपर होने वाली स्कॉलरशिप से लेके ऑल इनकम आर टैक्सेबल. उसके अंदर होने वाला ऑल एक्सपेंडिचर आर टैक्सेबल. ओके. इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी द फॉलोइंग अमंग द एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स. कौन कौन से छूट है? इंटरेस्ट प्रीमियम रिडम्पशन पेमेंट ऑफ सिक्योरिटी छूट है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड. अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट किए इट इज एग्जम्प्टेड. इंटरेस्ट ऑन रिलीफ बॉन्ड्स. रिलीफ बॉन्ड्स आर एग्जम्प्टेड. इट मींस इन शॉर्ट तुम्हें इसको रीड करना है. ये एक ऐसा चैप्टर है उसके अंदर हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि एक सिंपल है गव्हर्नमेंट रिलेटेड कुठले पॉलिसी आहे इट इज एक्झम्प्टेड आणि नॉन गव्हर्नमेंट आहे इट इज टॅक्सेबल. त्याने म्हणून त्याने बोलले नाही HF हिंदू अनलिमिटेड फॅमिली नॅशनल रिलीफ बॉन्ड गव्हर्नमेंट. NRI बॉन्ड्स स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अंडर गव्हर्नमेंट. ओके. इट इज नॉन टॅक्सेबल त्यामुळे त्याला एक्झम्प्टेड असं बोललं जातं. द लिस्ट ऑफ इज हियर. ही लिस्ट तुम्हाला पाठ करायची आहे आणि ह्यानंतरच थोडक्यातच पेन्शन अँड देन पेन्शन इज द मेन पार्ट. ऑल्सो पेन्शन आपण सॅलरी मध्ये शिकलेलो आहे कसं एक्झम्प्टेड आहे. आणि डिव्हिडंड इट इज ऑल एक्झम्प्टेड अंडर द इन्कम टॅक्स ऍक्ट. हे थोडक्यात थेरॉटिकल डिटेल्स होती फॉर H5. फ्रॉम टुमारो वी आर स्टडी द पेमेंट calculation of head 5. Okay, thank you all of you.